Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class grade 12 chapter 16 hydrocarbon. Today is the fourth lecture of this chapter. In today's lecture we will study about the alkene. In this lecture we will study about the general introduction of alkene, then nomenclature of alkene, and the last we will study about the structure of alkene and relative stability of alkene. Okay, let's start. Alkene. Alkene are also called olefins. Why they are called olefins? Because they form oily liquid on reaction with the chlorine gas. Next point, they contain at least one carbon-carbon double bond. Third point, they have the general formula CnH2n and N starting from the 2. So the first member of alkene will be ethene. Next, classified as an unsaturated hydrocarbon. Why? Because they are capable of reacting with hydrogen in presence of a catalyst to form a corresponding saturated alkene by breaking the weak pi bond. As we know, in alkene there are two bonds. In alkene there are two bonds. One is the strong sigma bond and second is the weak pi bond. So as we know that pi bond is a weak bond, so alkene can easily break this pi bond and can add hydrogen or any other atom or group of atom with it. Hybridization, they are sp2 hybridized. An example is ethene, which is also known as ethylene. Now nomenclature of alkene. For nomenclature of alkene there are few rules which will be studied one by one. Let's start. Number one rule, select the longest continuous carbon chain that contain a double bond. So you may see students here, if we select in this direction we will have only 6 carbon atom, but if we select this direction, in this direction we will have about the 8 carbon atom. So it will be our parent branch. Rule number 2, name this compound as you would an alkane, but change the ANE to ENE. Okay, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एज वी नो वेरी वेल हमारे पास यहाँ पर 8 कार्बन एटम्स हैं, तो 8 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा ऑक्टीन. और जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पर आपके पास ENE होगा, एज बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड वी कॉल्ड इट इन. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. इन थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने इनकी नंबरिंग करनी है जस्ट लाइक आपने अल्केन में किया था, लेकिन आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है कि ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है इसको सबसे स्मॉलर नंबर मिले. ओके, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में करते हैं तो हमें स्मॉलर नंबर नहीं मिलेगा इस डबल बॉन्ड को. सो हम यहाँ पर अपनी नंबरिंग की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखेंगे जिसमें हमारे पास इसको सबसे लीस्ट नंबर मिले, दैट इज़ द 1 and 2. Okay students, now come to the rule number 4. Now branch chain and other groups are treated as in the naming alkanes. Name the substituent group and designate its position on the parent chain with a number. आपने वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये तो इसको तो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया है, ये आपके पास सब्सिट्यूएंट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्रांच. तो अब आपके पास ये ब्रांच जो है वो किस जगह पर है, एट 4th पोजीशन पे है. तो आप पहले ब्रांच के नंबर के साथ अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, दैट इज़ द इथाइल. सो यू विल राइट द 4 इथाइल 1 ऑक्टेन. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ये 4 रूल्स हैं जो जिसको आप फॉलो करके ईजिली अल्कीन्स के नाम लिख सकते हैं. नाउ इफ़ यू हैव अ कंपाउंड विद मोर देन 1 डबल बॉन्ड, तो हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे. अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है डाईइन, 3 डबल बॉन्ड है ट्राईइन, एंड इफ़ यू हैव द 4 डबल बॉन्ड देन वी विल यूज़ द वर्ड टेट्राइन. यू मे सी स्टूडेंट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास है एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है. यहीं पे स्टूडेंट मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर लूँ कि अगर हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किसको करेंगे, लीस्ट कार्बन को. यू मे सी स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर
जो डबल बॉन्ड है 3 और 4 के दरमियान में है, लेकिन आपके पास लीस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज़ द 3। तो आप यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 होगा, तो आपके पास IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यू विल राइट द IUPAC नेम 1,3-ब्यूटा। ब्यूटा क्यों कहा है आपने, क्योंकि वी हैव द 4 कार्बन्स, 1,3-ब्यूटा एज वी हैव द 2 डबल बॉन्ड, सो द नेम विल बी ब्यूटाडाइईन। इसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूटा 1,3-डाइईन। सेम कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं हमारे पास है 1, 2, 3, हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, और इन 3 डबल बॉन्ड में अगर आप देखें तो आपके पास दैट इज़ द लीस्ट नंबर, 3 और 4 में 3 लीस्ट नंबर, 5 और 6 में 5 लीस्ट नंबर है। सो आप नाम किस तरह से लिखेंगे, यू विल राइट द 1,3,5 हेप्टा टेट्रा हेप्टा ट्राइईन, सॉरी 3 है आपके पास इसलिए 1,3,5 हेप्टा ट्राइईन। ओके स्टूडेंट्स, और आप दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं इस तरह से कि हेप्टा 1,3,5 ट्राइईन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अल्केन में बताया था, मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर लेती हूँ। आपके पास जितने भी नंबर होंगे उनके दरमियान आप कॉमा लगाएंगे, और हमेशा नंबर और वर्ड के दरमियान, हमेशा नंबर और वर्ड के दरमियान आप हाइफन लिखेंगे। ओके, बिटवीन द नंबर कॉमा होगा, और जहाँ पे आप नंबर और वर्ड होगा उसके दरमियान में आप हाइफन लिखेंगे, हाइफन में डैश लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे जिनको फॉलो करके आप इजीली अल्कीन के कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। Relative stability of alkene. Students, there are 3 factors that influence the alkene stability. We will study one by one. Number 1 is the degree of substitution. Degree of substitution means highly alkylated are more stable. हमारे पास वो अल्कीन जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एग्जांपल में, आप इधर देख सकते हैं आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें आपके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, आर ग्रुप आपके पास कितने हैं, 4, सो दैट इज़ मोर स्टेबल। नेक्स्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में आपके पास 3 हैं, देयर आर 3 अल्काइलेटेड ग्रुप, सो इट इज़ अ लिटल लेस स्टेबल देन द टेट्रा। उसके बाद आप देख सकते हैं डाई और उससे कम है, एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड सबसे कम स्टेबल है। ओके, सेकेंड इज़ द second stability factor is the stereochemistry. Stereochemistry, trans alkene are more stable than the cis alkene. Trans alkenes are more stable than the cis alkene. First of all students, let me tell you about the cis and trans. Cis क्या होता है हमारे पास, cis and trans they are actually the isomers of each other. Isomers हमारे पास the compound which have the same molecular formula but different structures are known as isomers. अब सिस आइसोमर में हमारे पास होता क्या है, इन सिस आइसोमर द आइसोमर्स इन विच द कंपाउंड द 2 सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. Again I repeat, the cis isomer is one in which 2 similar group are on the same side. You may see यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और दोनों हमारे पास सेम साइड पर है. ठीक है, इसको सिस आइसोमर कहा जाता है. एंड इन ट्रांस आइसोमर हमारे पास क्या होता है, trans isomer is that isomer in which similar group are on the opposite direction. आप देख सकते हैं on the opposite side of the double bond. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास दोनों opposite direction में है. Now come to the point, we were stating that trans alkenes are more stable than the cis alkene. Why? Due to the reduce the steric interaction. Steric interaction is mean the presence of atoms in close to the each other cause the van der Waals repulsion. ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रांस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिपल्शन का फैक्टर, ट्रांस में क्योंकि हमारे पास रिपल्शन का फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से हमारे पास ट्रांस हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है रादर देन सिस के, सिस आइसोमर के. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स. Conjugated alkenes are more stable than the isolated alkenes. Okay, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास conjugated alkene कहते हैं किसे हैं. Conjugated mean the double bonds are separated by only the single bond. You may see students, ये भी एक double bond है. एक मिनट, let me try again.
ये एक डबल बॉन्ड है आपके पास, एक ये डबल बॉन्ड है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ओनली वन सिंगल बॉन्ड. Okay, that is known as the conjugated diene. And what is isolated? In isolated, double bond are separated by more than one single bond. एक आपके पास डबल बॉन्ड ये रहा, एक आपके पास डबल बॉन्ड ये रहा, and they are separated by more than one single bond, and here there are two single bond. So according to the statement, conjugated alkenes are more stable than the isolated alkene. Why? That is because of the delocalization of the pi electron. Because of the delocalization of pi electron, the energy of molecule reduce, which make it more stable than the isolated alkenes. In isolated alkenes, electrons are at a fixed position between the two carbon atoms, so their energy are not as stable as the conjugated. While in the conjugated alkenes, they are separated all over the molecule, so they are more stable. Now come to the structure of alkene. Structure of alkene, students, a double bond consists of, as I told you कि हमारे पास alkenes में कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड होते हैं. ठीक है, एक बॉन्ड हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हमारे पास होता है पाई बॉन्ड. One sigma bond formed by the overlap of sp2 hybrid orbital and one pi bond formed by the overlap of parallel 2p orbitals. हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बॉन्ड फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, और पाई बॉन्ड हमारे पास जो ओवरलैप हो रहा होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द 2p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं. और बाकी हमारे पास द 2 कार्बन एटम्स ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड द 4 बॉन्डेड एटम्स लाई इन द वन प्लेन and with the bond angle of the 120 approximately. You may see student in the diagram, हमारे पास यहाँ पर you may see कि यहाँ पर हमारे पास आपको एक बॉन्ड शो किया गया है, और ये बॉन्ड जो है हमारे पास दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड, और ये किस तरह से बना है, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ज़रिए बना है. और ये जो आपको कलर्ड में शो किया गया है दैट इज़ एक्चुअली द पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2p ऑर्बिटल्स. आप देख सकते हैं आपके पास एक ही है, आपके पास 2p ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, और ये आपस में मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. और बाकी में आप देख सकते हैं आपके पास हाइड्रोजन सिंपल आपके पास हाइड्रोजन कार्बन के साथ sp2s ऑर्बिटल बना रहे हैं. इसको मज़ीद आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के ज़रिए विच इज़ वेरी मोर क्लियर. आप देख सकते हैं आपके पास मिड वाला जो कार्बन है उसका एक sp2 ऑर्बिटल इधर है, एक sp2 ऑर्बिटल इधर है, और एक sp2 ऑर्बिटल इधर है. ठीक है, और ये sp2 ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला जो sp2 ऑर्बिटल है ये दूसरे कार्बन के साथ मिलके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. ओके, इन नेक्स्ट डायग्राम बी है, इसमें आपको शो किया गया है कि किस तरह से p ऑर्बिटल आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, 2p ऑर्बिटल्स. ठीक है, जो कि आपके पास प्योर फॉर्म में होता है, जो कि हाइब्रिडाइज नहीं होता है, वो आपके पास इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं. और ये इन द लास्ट आपको ये सिग्मा बॉन्ड शो किया गया है, और यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड शो किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट द नॉमेनक्लेचर, हमने स्टडी किया, वी डिस्कस अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इन द लास्ट वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन. नाउ हियर इज असाइनमेंट स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फॉलोइंग olefins by the IUPAC system. आपके पास A से लेकर H तक आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इनकी नेमिंग करनी है. नंबर 2 पॉइंट, नेम द कंपाउंड्स A and B by the IUPAC nomenclature and compounds C and D by the trivial और common names and E by the derived name. ठीक है, आपने शुरू के दो जो हैं उनका IUPAC नेम करना है, C और D का आपने कॉमन नेमिंग करनी है. ठीक है, कॉमन नेमिंग हम किस तरह से करते हैं, अल्फ़ा बीटा और गैमा के ज़रिए करते हैं. ठीक है, और उसके लिए फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो का, न्यू का, या फिर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट जो है वो आपने उसका ड्राइव नेम जो भी आपके पास बन रहा है आपने वो बताना है. ठीक है, और स्टूडेंट कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3. एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड डिस्कस द ज्योमेट्रिक आइसोमर इन ईच. आपने जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था इन अल्केन कि किस तरह से अगर आपको कोई नेम दे दिया जाए तो आप उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपको नेम दे दिया गया है और आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है.
और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही है कि सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन में आपके पास लिखा हुआ है ब्यूटाडाइईन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज़ द ब्यूटाडाइईन। और ब्यूटाडाइईन में आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन आइटम्स आपने लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देना है, और फिर आपने हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है कार्बन की तमाम वैलेंसी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।